Hello dear students, today we are going to start the chapter number 3 of EVS 2 standard 4th, Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. First point, period of unrest. Unrest means Ashanti. This was a period of great unrest because the two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly fought with each other. And for their war, they used the Maratha armies. तो वो अशांति का माहौल था महाराष्ट्र में क्योंकि निज़ाम शाह और आदिल शाह दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली वॉर करते थे, युद्ध करते थे और अपने युद्ध के लिए वो मराठा आर्मीज का इस्तेमाल करते थे. Our next point is the brave Maratha Sardars. The Marathas were both brave and tough. तो मराठा सरदार शूरवीर थे, वो कठोर थे. They were also fearless and loyal to their master. वो निडर थे और निष्ठावान थे. And they were also proud of their achievement on the battlefield. All the Maratha Sardars had their own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employments, made him a Sardar of his kingdom. तो जो मराठा सरदार थे उनके पास उनकी खुद की आर्मी थी और अगर कोई सरदार अपनी आर्मी के साथ कोई सुल्तान के पास जाता था तब सुल्तान उसको सरदार बनाता था. Sometime they also conferred a jagir upon him and the sardar who received such a jagir considered himself a raja. कभी कभी सुल्तान उनको जागीर देते थे और जो सरदार जिनको ऐसी जागीर मिलती थी वो खुद को राजा कहलाते थे, वो खुद को राजा समझते थे. There were so many famous Maratha Sardars at the court of Ahmednagar and at the court of Bijapur, like Jadavs of Sindakhed, Nimbalkars of Fulton, Ghorpades of Mudhol, Mores of Jawi, and Bhosles of Verul, were some famous Maratha Sardars who work in the court of Nizam Shah and in the court of Adil Shah. तो ऐसे कुछ मराठा सरदार थे कि जो निज़ाम शाह और आदिल शाह के दरबार में काम करते थे. इन दोज द जाधव्स ऑफ सिंदखेड़ वेयर द डिसेंडेंट ऑफ द यादव ऑफ देवगिरी. मतलब जो सिंदखेड़ के जाधव सरदार थे वो देवगिरी के यादव के डिसेंडेंट थे, मतलब वो उनके वंशज थे. एंड जिजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड़. तो सिंदखेड़ के जो लखुजीराव जाधव सरदार थे उनकी लड़की थी जिजाबाई जो कि शिवाजी महाराज की माता थी. ऑल द मराठा सरदार्स वेर वेरी ब्रेव बट दे वेर ऑल्सो द एनिमीज ऑफ वन अनदर. दे नेवर थॉट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल. तो ये जो कुछ मराठा सरदार थे वो बहुत ही शूरवीर थे, पर वो ऐसा नहीं सोचते थे कि वो सब साथ मिलके अपने लोगों के लिए कुछ काम करें. अमोंग द फेमस फैमिलीज द भोसले ऑफ वेरुल शोज ग्रेट ब्रेवरी. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द भोसलेज ऑफ वेरुल. It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves was falling to pieces. The walls had developed cracks. The priest also had deserted the temple, and that's why the temple, which was built in honor of a great god, was totally neglected. Then all the devotees who came there, they mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. 400 साल पहले वेरुल गांव के पास घृष्णेश्वर नाम का एक मंदिर था. जो मंदिर पूरी तरह से गिर चुका था, उसकी दीवारों में दरारें आ चुकी थी और वहां के पुजारी भी उस मंदिर को छोड़ के चले गए थे. तो इस तरीके से भगवान शंकर के लिए बनाया गया ये मंदिर पूरी तरह से नजरअंदाज हो चुका था. यहाँ पे आने वाले भक्त उस मंदिर की उस स्थिति पे शोक व्यक्त करते थे, पर कोई भी उस मंदिर को रिपेयर करने के बारे में सोच नहीं रहा था. There was one great devotee of Lord Shiva. His name was Maloji Raje Bhosle, who visited the temple regularly. He also put flowers and bale on the lingam. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. तब मालोजी राजे भोसले ये भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे जो
हमेशा मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे और उन्होंने इस मंदिर को रिपेयर करने का काम हाथ में लिया और उस मंदिर की खोई हुई रौनक फिर से वापस आ गई। मालोजी राजे भोसले was the patil of Verul village and he was also the great devotee of Lord Shiva. His father name was Babaji Raje Bhosle and Babaji Raje Bhosle had the rights of a patil in the Verul village. He had two sons, Maloji Raje who was the elder son and Vithoji Raje who was the younger one. तो मालोजी राजे भोसले वेरूल गांव के पाटिल थे। उनके पिताजी का नाम बाबाजी राजे भोसले था और वो वेरूल गांव के पाटिल थे। उनके दो लड़के थे, मालोजी राजे और विठोजी राजे। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेर वेरी ब्रेव। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली had attacked the kingdom of Nizam Shah. That time, Daulatabad was the capital of Nizam Shah and Malik Ambar was his wazir. Wazir means chief minister. Malik Ambar was able and wise. On his recommendation, the Nizam Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. मालोजी राजे और विठोजी राजे दोनों भी बहुत ही शूरवीर थे। उस वक्त दिल्ली के मुगल एम्परर ने निजाम शाह के राज्य पे आक्रमण किया। उस वक्त दौलताबाद ये निजाम शाह के राज्य की राजधानी थी और मलिक अंबर उसके राज्य का वजीर था। मलिक अंबर बहुत ही काबिल और बुद्धिमान ऐसा वजीर था और उसके सिफारिश के ऊपर निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे की जागीर दी थी। सो द भोसलेज बिकम रिच एंड पावरफुल। Maloji Raje's wife was Umabai and she came from the family of the Nimbalkars of Phaltan. Maloji Raje and Umabai had two sons, Shahaji and Sharifji. Maloji Raje was killed in a battle at Indapur and that time Shahaji Raje was only 5 years old. Then Vithoji Raje looked after the children and the Jagir. Later, he asked in marriage for Shahaji, the daughter of Lakhujirao Jadhav. Her name was Jizabai. Lakhujirao Jadhav was a brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jizabai with great pomp. पुणे और सुपे की जागीर मिलने के बाद भोसले फैमिली बहुत ही अमीर बन गई। मालोजी राजे की पत्नी का नाम उमाबाई था और उनको 2 लड़के थे, शाहजी और शरीफ जी। उसके बाद इंदापुर में जो युद्ध हुआ उसमें मालोजी राजे की डेथ हो गई। उस वक्त शाहजी राजे की उम्र बस 5 साल की थी। मालोजी राजे की डेथ के बाद विठोजी राजे ने बच्चों का ख्याल रखा और उसके साथ जागीर का काम भी उन्होंने ही देखा। उसके बाद जब शाहजी राजे बड़े हो गए तब उनको लखुजीराव जाधव के लड़की का रिश्ता आया और उनकी लड़की का नाम था जिजाबाई। लखुजीराव जाधव निजाम शाह के दरबार के बहुत ही बहादुर ऐसे सरदार थे और उन्होंने शाहजी राजे और जिजाबाई की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई। निजाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। शाहजी राजे वॉज ऑल्सो वेरी ब्रेव and capable man. He also had great respect at the court of Nizam Shah. That time, the Mughal emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. For this, he took the help of Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Shahaji Raje fought bravely to save Nizam Shahi. They defeated both the armies. In that battle, Shahaji Raje had played great valor, so he was praised everywhere as a brave general. His reputation in the court was also increased that even Malik Ambar began to feel jealous of him, and this led to antagonism between them. As a result, Shahaji Raje left Nizam Shahi and joined the court of Adil Shah at Bijapur. निजाम शाह ने मालोजी राजे को दी हुई जागीर बाद में शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे भी बहुत ही शूरवीर थे और उनको भी निजाम शाह के दरबार में बहुत ही सम्मान था। उसके बाद दिल्ली के मुगल सम्राट ने
आदिल शाह की मदद से निज़ाम शाह के राज्य पे आक्रमण किया। उस वक्त मलिक अंबर और शहाजी राजे ने निज़ाम शाही को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने दोनों ही सेनाओं को उस युद्ध में हराया। उस युद्ध में शहाजी राजे ने बहुत ही बड़ा शौर्य दिखाया कि जिसकी वजह से सब जगह पे उनकी प्रशंसा होने लगी और निज़ाम शाह के दरबार में उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ गई और उसकी वजह से मलिक अंबर को जलन महसूस होने लगी और इसके कारण दोनों में बहुत ही शत्रुता बढ़ गई और वो दोनों में शत्रुता बढ़ने की वजह से शहाजी राजे ने निज़ाम शाह का दरबार छोड़ के वो आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ऑनर्ड द शहाजी राजे with the title of Sir Lashkar. Sir Lashkar means Chief of Army. Later on, there were so many developments took place in Nizam Shahi. The Wazir Malik Anbar died. His scheming son Fateh Khan became the Wazir of Nizam Shahi. During the period of Fateh Khan, Nizam Shahi began to decline. So, Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and again returned back to Nizam Shahi. आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब दिया। उसके बाद यहाँ पे निज़ाम शाही में बहुत ही चेंजेस हो गए। वहाँ पे मलिक अंबर की डेथ हो गई और उसका षड्यंत्रकारी लड़का फतेह खान निज़ाम शाह का वजीर बन गया। पर इस फतेह खान के वक्त में निज़ाम शाही का पतन होने लगा, मतलब निज़ाम शाही खत्म होने लगी और तब निज़ाम शाह की माताजी ने, उनकी मदर ने शाहजी राजे को निज़ाम शाही को बचाने के लिए निज़ाम शाही में वापस आने की याचना की और फिर उनके कहने पे शाहजी राजे फिर से निज़ाम शाही में वापस आ गए। इन दिस वे वी हैड लर्न अबाउट द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेज। इन द नेक्स्ट चैप्टर we will learn about the childhood of Shivaji Maharaj.